Hello everyone. Now let us understand one of the very important topic of business studies, that is recruitment. What is recruitment now? See, if I take this bunch of all the pens, that is recruitment. If I select one of the pens from this bunch, this is selection. So now let us understand how a human resource manager in an organization do recruitment and how he selects the best employees so that he can give the best employee to the organization. So let us start. So recruitment is a process whereby we are attracting the different employees to the organization in order to select the best employees. The main process of recruitment is identifying the source of required staff and contacting the resource to attract the sufficient number of candidates from which we can make the best selection. If there is a requirement of 50 workers and we have options of 100 workers, then we have for every post 2 workers to take an interview, and after taking an interview we can select one of the employees for that position. Recruitment is a method by which we can search the prospective employees and then stimulate them, ask them or offer them various offers so that they apply in our company and apply for the job वैकेंसी इन आर ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि रिक्रूटमेंट एक लिंकिंग पार्ट है वेयर इन जो जॉब ढूंढ रहा है और जिसको जॉब करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए वो एम्प्लॉय से उस एम्प्लॉय को मिलाने का काम रिक्रूटमेंट करता है. The person who is searching for the job and person who wants to employ a person to do a certain job. Recruitment is a positive process, whereas selection is a negative process. Recruitment is getting more and more employees. Selecting is just selecting the employees required for your organization, and it is a negative process. Recruitment is an important function for any organization. Why? It gives the organization the number of employees required for doing the various work in an organization, and it helps the unemployed people to get or seek employment, and it helps them to find the job according to their knowledge and requirement. Recruitment is a pervasive function. It is a function which is applicable everywhere. Secondly, it is a two-way process wherein it is a two-way process because there is a recruiter and there is a recruitee. Recruiter is a person who recruits the employees, means he asks the employees to come in work in the organization, and recruitee is a person who is being recruited, यानी कि वो employee जो काम करने के लिए आता है किसी भी organization में. रिक्रूटमेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए है क्योंकि वहां पे देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज दैट HR हैज टू फॉलो. The criteria of women empowerment, there should be certain percentage of women, there's certain percentage of reserve class, and also he has to seek that the equal opportunity should be given to each and every employee for the tests that are conducted for the application in a particular job, so that every employee gets the equal chance of selection and non-selection in an organization. Now comes another very important part, that is the sources of recruitment. Means अब कहां से एम्प्लॉयज हमारे पास आ सकते हैं. हमारे पास एम्प्लॉयज दो सोर्सेस से आते हैं. पहला है इंटरनल सोर्सेस, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्सेस. इंटरनल मीन्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. अब हमारे पास जो भी स्टाफ अवेलेबल है दैट कैन बी प्रमोटेड, ट्रांसफर्ड, एक्स एम्प्लॉयज एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज. अब हमको मान लो एक मैनेजर चाहिए था
ऑलरेडी एक असिस्टेंट मैनेजर हमारे पास काम कर रहा था, तो उसको हम प्रमोट कर देंगे। उसको प्रमोट करने के बाद ही विल बी प्रमोटेड टू अ हायर पोजीशन, एंड दिस इज द वन ऑफ द फैक्टर कि हमारे यहाँ जो ऑलरेडी काम कर रहा था उसको हमने पोजीशन में भी इंक्रीमेंट दे दिया, साथ ही साथ वो भी खुश हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी नया एम्प्लॉय हायर नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही चेन जो चलती है ऑफ प्रमोशन, एवरी ईयर एम्प्लॉयज आर बीइंग प्रमोटेड। नाउ व्हाट इज ट्रांसफर? ट्रांसफर का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को एक जॉब लोकेशन से दूसरी जॉब लोकेशन से पे भेज दिया जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर इज इंक्रीज इन पे, इंक्रीज इन स्टेटस, कोई जरूरी नहीं है। बस एक जॉब लोकेशन से उसको दूसरी जॉब लोकेशन में सेम काम के लिए भेज दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लर्क इन SBI फ्रॉम अ ब्रांच इज ट्रांसफर टू अनदर ब्रांच। दोनों ब्रांच में वो क्लर्क ही था, बस वो एक जॉब लोकेशन से दूसरी जॉब लोकेशन पे भेज दिया गया। नाउ व्हाट आर एक्स एम्प्लॉयज? फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में हम वो एम्प्लॉयज को दोबारा एम्प्लॉय कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रह चुके होंगे, और उनके पार्ट रहने के बाद, जैसे कि एक्स सर्विसमैन, आपने सुना होगा एक्स सर्विसमैन अलग अलग चीजों में अप्लाई करते हैं, अलग अलग चीजों में जॉब करते हैं, वैसे ही आप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो एक्स एम्प्लॉयज को हायर कर लेती हैं कि वो एज एन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे। भले ही वो रिटायर हो चुके हैं, बट वो ऑर्गेनाइजेशन में रह के ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख करेंगे और देखेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होंगी तो वहां पे तुरंत वो उनको इंस्ट्रक्ट कर देंगे। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आपका ये हो सकता है कि ऑलरेडी मैं काम कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे काम करने के बाद मेरा भाई, मेरी बहन या कोई भी मेरा फ्रेंड अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहे तो मैं उसका नाम रिकमेंड कर दूंगा। एज पर माई रिकमेंडेशन ही विल बी गिवन अ सर्टेन प्रेफरेंस, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी एंड ही विल बी ऑफर्ड दैट पर्टिकुलर जॉब। So the main advantages and disadvantages of internal sources of recruitment is that you get trust. क्योंकि एम्प्लॉय जो ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहा है वो जिसको भी लगवाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या खुद भी ऊपर प्रमोट होगा, ही विल बी ट्रस्टवर्दी एंड ही विल वर्क विथ फुल डिवोशन, और वो किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा। इसीलिए मेन एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज दैट यू गेट ट्रस्ट, एज वेल एज सेकेंडली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी नोन पर्सन काम कर रहा है, ही नोज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको उसको ट्रेनिंग पे नहीं भेजना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको उसके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ही ऑलरेडी नोज द ऑर्गेनाइजेशन वेल। तो वहां पे ये एडवांटेज इंटरनल सोर्स में मिलता है। अब सोचिए यहां पे डिसएडवांटेज क्या मिलता होगा। अब डिसएडवांटेज में आपका सिर्फ ये होता है कि यू डोंट गेट फ्रेश टैलेंट, आपको फ्रेश टैलेंट यहां पे नहीं मिलता है। यानी कि जो एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे थे पिछले 10 साल से, वही 10 साल के बाद 11वें साल वो एक नई पोजीशन पे प्रमोट हो जाते, दे आर नॉट चेंज। सो फ्रेश नॉलेज नहीं मिलती आपको और फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता, केवल यही आपका इसमें डिसएडवांटेज होता है। नाउ द अनदर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या आएगा, जिसमें कि हमको बाहर से एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, जिसमें कि वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज अ सोर्स वेयर इन हमको वेरियस एड्स देखने को मिलते हैं, वेदर इन न्यूज़पेपर, वेदर इन टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा, जिससे कि हमारे पास एम्प्लॉयज काम करने आते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कैंपसेस में जाती है, कॉलेजेस में जाती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैंपस रिक्रूटमेंट में वेरियस कॉलेजेस में आपकी कंपनीज आती हैं, दे टेक इंटरव्यू एंड हायर पीपल। दिस इज अ वे ऑफ हायरिंग द बेस्ट एंड फ्रेश टैलेंट फ्रॉम द मार्केट, और उस मार्केट से आप फ्रेश टैलेंट उठा के उनको ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कराने के लिए लेके आते हैं। दिस इज द सेकेंड सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में जो आपके शहर में सेवा योजन कार्यालय होते हैं, सेवा योजन कार्यालय या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जहां पे आपके वो लोग रजिस्टर कराते हैं जो अभी तक अनएम्प्लॉयड होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इन कार्यालय में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। इफ एनी कंपनी एंटर्स द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, दे सबमिट देयर रिक्वायरमेंट, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उनको एम्प्लॉयज प्रोवाइड कर देती हैं। फिर उन एम्प्लॉयज का कंपनीज इंटरव्यू लेती हैं, इंटरव्यू करके उनको सेलेक्ट कर लेती हैं। देन अनदर कम्स इज द प्लेसमेंट एजेंसीज। अब
प्लेसमेंट एजेंसीज एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का वर्किंग सेम होती है, बट प्लेसमेंट एजेंसीज में दे चार्ज अ सर्टेन फीस। अगर आपका इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एज वेल एज द एम्प्लॉय हु इज सेलेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन बोथ पे अ सर्टेन फीस टू द प्लेसमेंट एजेंसीज फॉर ब्रिंगिंग देम टुगेदर। नाउ नेक्स्ट कम्स द कैजुअल कॉलर्स। अब कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं? अब एक साल हमने एडवर्टीजमेंट के थ्रू वेरियस रिक्रूटमेंट किए या हमने एम्प्लॉयज को बुलाया अपने यहाँ काम करने के लिए। अब उनमें से जो बेस्ट था वो तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इन केस अगर वो मान लो नेक्स्ट ईयर किसी और कंपनी में स्विच कर गया या ऑर्गेनाइजेशन को उसने छोड़ दिया, तो जो सेकंड बेस्ट कैंडिडेट होगा या फिर जो हमारे पास रिमेनिंग इंटरव्यू के लिए जो एम्प्लॉयज होंगे उनको हम चांस देते हैं। अब उनको चांस देने के बाद हम क्या करते हैं, फोन कॉल के थ्रू उनको बुलाते हैं कि दैट यू वर इन द वेटिंग लिस्ट एंड यू कैन कम अगेन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव द इंटरव्यू। गेट हायरिंग इज अनदर अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड में आपका ये मेथड के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे एक नोटिस चिपका देते हैं दैट दिस रिक्वायरमेंट इज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हेल्पर्स रिक्वायर्ड होते हैं और देयर आर वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्समैन, लोग अपने अपने शॉप के गेट पे चिपका देते हैं। तो उसके थ्रू आपके एम्प्लॉयज आके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देके वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करवा लेते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को ब्रिज बनाना हुआ, बिल्डिंग बनाना हुआ, तो वो अलग अलग लेबर्स को इकट्ठा करके उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए लेके आता है। यानी कि ही हैज द लिंक बिटवीन द वेरियस लेबर्स, और वो लेबर्स उसके लिंक में रहते हैं, वो उनको सबको इकट्ठा करता है, उस ब्रिज या उस डैम को या फिर उस बिल्डिंग को बनवाता है और फिर उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड करता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के मेरिट्स अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट ये है, वी हैव अ वाइडर चॉइस। हमारे पास फ्रेश टैलेंट होगा, वाइडर चॉइस होगा। फ्रेश टैलेंट में हमें वो टैलेंट मिलेगा जो कि अभी ही एजुकेशन कंप्लीट करके आ रहा है, दैट टैलेंट वी विल गेट, एज वेल एज वी विल गेट अ वाइडर चॉइस। Whereas in internal source of recruitment, we only get the employees who are already working in the organization. We get a competitive environment wherein a candidate coming from outside the organization competes with the person working in the organization, as well as we get a competitive environment, as well as it in turn increases the productivity of the company and provides benefit. फिलिंग इन ऑफ वैकेंसीज, अगर आपका जो जूनियर एम्प्लॉय है वो इतना कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है कि वो ऊपर प्रमोट किया जा सके, देन इन केस यू हैव टू रिलाई ऑन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। The disadvantages are that it is time consuming and it is very costly. It costs to the organization as the filling in of forms, taking various tests, etc. It is problematic as well as it is costly for the organization. That is, by printing of advertisements, etc., costs a company a lot in recruitment from external source of recruitment. Then the candidates from outside cannot be trusted by the organization. It is a fact that any employee which is having or which is hired from outside the organization will not have any soft corner for the company. It may cause resentment among the employees or working already in the organization. They try to take out mistakes or point out various mistakes of the employees who are externally recruited. So at the end, both external and internal recruitment are important for any organization to survive, and the mixture of both should be balanced enough so that no employees working in the organization feel disheartened and every employee who is being hired feels safe. Basically, the HR manager should see all these aspects, that no employee in the organization gets disheartened. Every employee should be treated as equal in the organization, and this should be seen by the human resource manager. Another source of recruitment is e-recruitment. अब now what do you mean by e-recruitment? E-recruitment का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट, वेयर इन आप अपने वेरियस रिज्यूम, जितनी भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा लिंक्डइन,
shine.com, naukri.com, ऑल दीज वेबसाइट्स में आप अपने अपने रिज्यूम डालते हैं और फिर उसके बाद आपको रिक्रूटर्स कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू करने के बाद आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाता है. व्हाट आर द बेनिफिट? दैट 24/7 योर रिज्यूम इज अवेलेबल ओवर देयर. Every recruiter can see your resume over there, and if he feels you to be worthy enough to be called for an interview, he directly gives you a phone call after seeing your resume and offers you an interview and then offers you the particular job. So this is a very helpful platform wherein by submitting your CV you can get various jobs in any parts of the world or any part of India, wherein by submitting your resume you can submit your qualities, your skills, your talent. You can demonstrate every talent that you have in those particular internet portals, and after submitting those portals you can wait for your interview call.